Hello student, I have received a lot of queries related to the topic how to draw a fixture in knockout tournament. So that is why I am come up with this tutorial. Hopefully I'll clarify all your doubts related to this particular topic. So let's start. This topic is related to the unit 1 planning in sports and type of tournament. Broadly, we can classify the tournament into 4 categories: knockout tournament, league tournament, combination tournament, and challenge tournament. And from the knockout tournament, further we can divide it into 3 categories: single elimination, double elimination, and consolation tournament. So first we'll start with the single elimination tournament. So single elimination tournament means a player or a team once defeated get eliminated from the tournament. So how to draw a fixture in single elimination tournament? So start with the working note first. Working note. Take an example of total number of teams are 11 here. We'll take an example of 11 teams to draw a fixture. So first start with the working note. First working note which we have to make is number of matches. So first we have to calculate the number of matches to be played in that type of tournament. So number of matches, if I am being the organizer of the tournament, so I am more interested to know how many matches is to be played in that tournament. So how much days I have to required, कितने दिन मुझे लगेंगे उस टूर्नामेंट को कंप्लीट करने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट. सो नंबर ऑफ टीम्स आर 11. हियर फॉर्मूला इज, सो नोट डाउन द फॉर्मूला. नंबर ऑफ टीम्स -1. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 11. सो 11 - 1, 10 मैचेस. So 10 matches is to be played in that particular type of tournament. Take another example. I'll take another example so that it will be clear to you how to calculate. If number of teams are in the tournament is 45, so number of teams are 45. So our formula is number of teams -1. So 45 - 1, so 44 matches to be played in case if number of teams are 45. So here we are only taking the example of 11 teams. So I'll given the example, one more example, so that it will be clear to you. So second working note, start with the second working note. Calculate the number of rounds. Number of rounds formula, I'll write down the formula first. Formula is 2 की power n. So number of round, if I am being the player, so I am more interested to know how many rounds I have to play to reach to the final or I'll be able to win that tournament. तो अगर मुझे ये टूर्नामेंट जीतना है, मुझे कितने राउंड खेलने पड़ेंगे, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो इफ आई एम ए प्लेयर और आई एम रिप्रेजेंटिंग ए टीम और ए स्कूल. सो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो हाउ मेनी राउंड्स आई हैव टू प्ले. सो फॉर्मूला इज 2 की पावर n. तो n here is number of rounds and 2 is representing the power of 2 is representing the number of teams. So in case if we have 8 teams, so 2 की power 3. If we have basically the multiple of 2s, you have to just understand the product of multiple of 2s. So if number of teams are 4, if number of teams are 8, if number of teams are the multiple of 2, 16, 32, 64, I'll just write down here so you are able to understand. 16, 32, 64 and so on. So all these numbers are the product and multiple of 2s. So here we have to find out the 2 की power n. So whatsoever be the product, if number of teams are 8, so we have to convert it into 2 की power. तो 2 की power क्या हो जाएगा? 2 की power 3. If number of teams are 4, 2 की power
2. If number of teams are 16, 2 की power 4. If number of teams are 32, 2 की power 5. So here n is the number of rounds. So if number of teams are 4, so how many rounds are there? 2 rounds. If number of teams are 8, but here problem is that number of teams here is 11. So 11 is not the multiple of 2. So यहाँ पर हमारे को सोचने का जो तरीका है वो है कि नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2, कि व्हाट्सएवर बी द नंबर ऑफ टीम्स, जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स है उसकी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2. सो नाउ नंबर ऑफ टीम्स आर 11. इसके पहले वाली अगर हम सोचें तो 8 है, और इसके बाद वाली अगर हम सोचें तो 16 है. तो 16 इज दैट प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2. So we have to take the 16 here because 2 की पावर we require 2 की पावर. तो 2 की पावर 11 में पॉसिबल नहीं हो सकती because 11 is not that product of multiple of 2. तो हमें इसको सोचना पड़ेगा इस वे में. तो हमारे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 11 को 2 की पावर में. तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 की पावर हमारी आएगी 16. सो वी हैव टू राइट हियर 16, कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2. तो यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4. तो 2 की पावर 4 हो गया. तो 4 जो है हमारा नंबर ऑफ राउंड्स है. तो नंबर ऑफ राउंड्स इज 4 राउंड्स इज टू बी प्लेड. विल टेक अनदर एग्जांपल. इफ नंबर ऑफ टीम्स आर एग्जैक्टली 32 देन देयर इज नो प्रॉब्लम. तो 2 की पावर 5, तो 5 राउंड्स इज टू बी प्लेड. इफ नंबर ऑफ टीम्स आर 35, सो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टीम्स इज कितना आएगा. यहाँ पर 32 है तो यहाँ 64 आएगा. तो 64 वी हैव टू टेक 64 नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2. तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 64. तो 2 की पावर 6. तो 6 राउंड्स इज टू बी प्लेड इन दैट टूर्नामेंट. So I hope number of rounds are clear. How we have to calculate the number of rounds. If you want to note down, you can note down here. So we'll start with the next page. You can take the screenshot also. Okay, now step 3. Step 3 is divide the team into 2 halves. So the third step is required when the number of teams are in odd number. Just note down here, if number of teams are in odd number, then third step is required. Otherwise there is no need to just do that working of this on this third step. If number of teams are even number, for example number of teams are 10, so in upper half or lower half we divide the team into 2 categories. So 5 teams equally divided. But number of teams are in odd number, then we have to calculate the number of teams in upper half and lower half. So number of teams in upper half, formula is number of teams plus 1 divide by 2. तो number of teams हमारे यहाँ पर है 11. तो 11 plus 1 2. तो 6 teams is to be there in upper half, and number of teams in lower half, formula is number of teams, जितनी भी टीम्स है हमारी वहाँ लिखने के बाद -1 डिवाइड बाय 2. तो नंबर ऑफ टीम्स 11 -1. तो 5 टीम्स वी हैव टू प्लेस 5 टीम्स इन lower half and 6 teams in upper half. So I hope third step is clear. Now I'll start with the 4 steps. Fourth step is calculate the number of byes. Number of byes, first of all I'll just write down the formula. Formula is next highest power of 2 minus number of टीम्स. तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइज. तो फर्स्ट दिस फोर्थ स्टेप इज रिक्वायर्ड व्हेन. ये कब रिक्वायर्ड होगा व्हेन नंबर ऑफ टीम्स आर नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2.
अब मल्टीपल ऑफ टूज ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ बार बार यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इन स्टेप नंबर 2 राउंड्स के लिए भी हमने प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ टूज हमने अंडरस्टैंड किया था। प्रोडक्ट आई राइट इट अगेन 4, 8, 16, 32, 64। अगर ये नंबर ऑफ टीम्स का फिगर है, अगर नंबर ऑफ टीम्स 4 है, नंबर ऑफ टीम्स 8 है, 16 है, 32 है, 64 एंड सो ऑन, इससे आगे 128 आएगा, देन 256 and so on. We can write it in the multiple of 2 and keep on increasing that number. अगर ये numbers हैं then this 4th step is not required. But अगर number of teams the product of multiple of 2s में नहीं है then इस step को हमें यूज़ करना है। अगर 4, 8, 16, 32, 64 टीम्स है then 4th step की हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ 22 का मतलब क्या है? We have to introduce the buys in the fixture when number of teams are not in the multiple of 2. So there is no need to give the buys in the tournament. So formula we are able to understand, next highest power of 2 number of teams. तो number of teams हम लोगों की 11 है। 11 के बाद next highest power of 2 जो कि multiple of 2s में आएगा वो है 16। तो obvious है जब 16 है तो हमें यहाँ पर straight away नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 16 लेंगे। नंबर ऑफ टीम्स हम लोगों के पास 11 है, तो नाउ 16 माइनस 11 5 बाइज इज टू बी गिवन इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूर्नामेंट। तो 5 बाइज हमें यहाँ पर टोटल प्लेस करनी है। तो अपर हाफ में नाउ डिस्ट्रीब्यूट द बाई इनटू 2 हाफ। वी हैव इन थर्ड स्टेप वी हैव डिवाइडेड द टीम इनटू 2 हाफ्स, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो अब अपर हाफ में कितनी बाई हम लोग रखेंगे? अपर हाफ बाइज, number of buys in upper half, तो I just write down the formula, number of buys minus 1 divide by 2। तो यहाँ पर number of buys हमारे पास 5 है, 5 minus 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 buys is to be given in upper half। now lower half buys, lower half में buys, तो formula is number of buys प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो नंबर ऑफ बाइज 5 है, प्लस 1 करेंगे एंड 3 बाइज, 3 बाई और 2 बाई। 2 बाई कहाँ पर जाएगी? अपर हाफ में, एंड 3 बाइज लोअर हाफ में। तो आई होप स्टेप नंबर 4 इज क्लियर। इसका मैं एक टेबल और नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन कर रहा हूँ, तो नोट डाउन द टेबल, देयर विल बी नो कंफ्यूजन आफ्टर दैट। सो फॉर्मूला इज नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टीम्स आर इन बिटवीन 5 to 7। अगर नंबर ऑफ टीम्स 5 है, 6 है, 7 है, तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 वी हैव टू टेक 8। इफ नंबर ऑफ टीम्स आर 9, 10, 11, 12 अप टू 15 तक है, देन वी हैव टू टेक द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 16। अगर 17 और 31 के बीच में टीम्स का कोई नंबर है, देन वी हैव टू टेक द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ द, देन आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल हाउ टू यूज दिस टेबल। इफ नंबर ऑफ टीम्स एक टूर्नामेंट जो हमें मिला है उसमें नंबर ऑफ टीम्स है 55। तो 55 जो है किस ग्रुप में जा रहा है? 33 to 65 के बीच में आ रहा है। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर हमें क्या लेनी है? 65। तो नंबर ऑफ बाइज 64 माइनस 55, तो नंबर ऑफ बाइज हमारी आ गई 9 बाइज। टेक एन एग्जाम्पल, इफ नंबर ऑफ टीम्स आर 30, एग्जैक्ट 30, तो 30 किस नंबर ऑफ टीम्स के ग्रुप में आ रहा है? 17 to 31 के बीच में आ रहा है। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट पावर वी हैव टू टेक दिस 32 माइनस 30, तो 2 बाइज इज टू बी गिवन। आई होप हाउ टू यूज दिस टेबल, so just note down, I'll give you a few minutes. Now step number 5, working note number 5, placing buys to teams or players। कि जो बाई हमने नंबर ऑफ बाइज यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं 5, तो 5 बाइज हमें किस टीम और किस प्लेयर को देनी है? We are talking about the, I'll repeat again the order of rule of placing the buy. First buy is to be given in the lower half last team. Second buy is to be given in the upper half first team. Third buy is to be given in the lower half first team. And fourth buy is to be given to the upper half last team.
then fifth by, if that case is here, then second last team lower half, upper half second team, seventh by अगर required है तो second team lower half की, and eighth by is to be upper half second last team. तो ये हमारा 4 का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा. देन अगेन यू हैव टू रिपीट द साइकिल. तो ये सेकेंड आ रहा था, देन विल कन्वर्ट इट इनटू थर्ड लास्ट टीम, थर्ड टीम ऑफ द लोअर हाफ एंड सेकेंड लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ. तो इस ऑर्डर को हम लोग 4-4 के ऑर्डर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट सो दैट आई विल चेंज द पेज नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज. नाउ वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ स्टार्ट द मेन क्वेश्चन जो हमें प्रेजेंट करना है, दैट इज द फिक्सचर. टू ड्रॉ ए फिक्सचर, सो फिक्सचर यू हैव टू राइट डाउन एट द टॉप ABCD टूर्नामेंट whatsoever with the tournament you have to write it after it. then round teams you have to place it here. तो हमारे यहाँ पर 11 टीम्स हैं, तो जस्ट नोट डाउन द नंबर 1 2 3 11 तक का जो ऑर्डर है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. फर्स्ट वर्किंग नोट में वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ टूर्नामेंट. एट द एंड ऑफ दिस पिक्चर विल वेरीफाई इट कि नंबर हमारा नंबर ऑफ मैचेस उतना हमारा बना या नहीं बना. देन सेकेंड वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ राउंड्स. तो नंबर ऑफ राउंड्स हमने कैलकुलेट किया था 4. तो फर्स्ट 2 3 एंड 4 राउंड इज टू बी प्लेड इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूर्नामेंट. एंड थर्ड वर्किंग नोट में वी हैव डिवाइडेड द टीम इनटू 2 हाफ्स. सो अपर हाफ में हमने रखी थी 6 टीम्स. कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा अपर हाफ है और ये हमारा लोअर हाफ है. तो जस्ट राइट डाउन हियर सो इट विल बी क्लियर टू यू. ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है. अपर हाफ में 6 टीम्स थी, लोअर हाफ में 5 टीम्स हैं. तो लोअर एंड अपर हाफ में हमने डिवाइड कर दिया. एंड स्टेप नंबर 4 में हमने बाई कैलकुलेट की थी. टोटल नंबर ऑफ बाइज आर 5. तो अपर हाफ में हमें 2 बाइज रखनी है, लोअर हाफ में 3 बाइज रखनी है. एंड दैट रूल ऑफ अलॉटिंग बाई इज, तो स्टार्ट विद द रूल. तो फर्स्ट रूल सेज नंबर 1 बाई इज टू बी गिवन इन द लोअर हाफ लास्ट टीम. तो ये बाई नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू हमारा रूल क्या कहता है. तो बाई नंबर 1. बाई नंबर 2 रूल सेज अपर हाफ फर्स्ट टीम. तो ये फर्स्ट टीम है हमारी अपर हाफ की. तो बाई नंबर 2. बाई नंबर 3 वी हैव टू गिव लोअर हाफ फर्स्ट टीम. एंड बाई नंबर 4 अपर हाफ लास्ट टीम बाई नंबर 4. तो ये हमारे 4 का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. देन वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड साइकिल. तो सेकेंड साइकिल में देयर इज ओनली 1 बाई लेफ्ट. तो बाई नंबर 5. तो बाई नंबर 5 अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द बॉटम साइड. तो लोअर हाफ बाई नंबर 5. अगर यहाँ पर बाई नंबर 6 होता, वेयर वी हैव टू प्लेस द बाई नंबर 6. रूल सेज अपर हाफ सेकेंड टीम बाई नंबर 6 वी हैव टू प्लेस इट हियर. अगर बाई नंबर 7 होता तो रूल सेज लोअर हाफ सेकेंड लास्ट टीम. तो लोअर हाफ की ये फर्स्ट टीम है, ये सेकेंड टीम है लोअर हाफ की. तो सेकेंड लास्ट टीम को हमें यहाँ प्लेस करना था. अगर 8th बाई होती देन अपर हाफ सेकेंड लास्ट टीम. तो सेकेंड लास्ट टीम इज दिस, सेकेंड नंबर टीम लोअर हाफ की है. तो ये 5th नंबर एंड आफ्टर दिस 6th नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर. तो अगेन ये 4 का साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है. तो इस वे में हमें बाई प्लेस करना है. तो नाउ स्टार्ट द ग्रुपिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट राउंड का जो मैच है आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है. जिन टीम्स के आगे वी आर प्लेसिंग द बाई, दीज टीम्स आर स्ट्रेट अवे इन द सेकेंड राउंड. तो ये सेकेंड राउंड खेल रही है. ओनली फर्स्ट राउंड में मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, मैच नंबर 3, ये 3 मैचेस हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में प्ले किए हैं. नाउ सेकेंड राउंड, तो इनको एक एडवांटेज मिला हुआ था. दे आर स्ट्रेट अवे इन द सेकेंड राउंड. वी हैव प्लेस बाई इन फ्रंट ऑफ दीज टीम्स. देन ये सेकेंड राउंड का हमारा ग्रुपिंग हो रहा है. ये सेकेंड राउंड के मैचेस बन रहे हैं. एंड ये थर्ड राउंड के हमारे मैचेस बन रहे हैं. थर्ड राउंड मीन्स सेमीफाइनल स्टेज इन दिस केस. एंड लास्ट इज द फाइनल. तो ये हमारा फाइनल है और यहाँ पर हम लोग विनर डिसाइड करेंगे. तो विनर हमारा यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा. अब नंबर ऑफ मैचेस आर 1 2 3 मैचेस हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में खेले. देन 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो हम लोगों ने जो फर्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ मैचेस का,
So 11 teams, formula is number of teams minus 1, 10 matches is to be played. So you can see from, you can verify it from 10 matches हम लोगों ने टोटल इस फिक्चर में ड्रॉ किए हैं. तो ये हमारा फिक्चर जो कंप्लीट होता है ये है सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट का. इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट विद द सीडिंग एंड स्पेशल सीडिंग. हाउ टू draw the fixture according to the seeding and special seeding. So in next tutorial I'll definitely cover the seeding and the special seeding tournament. So wait for the next tutorial.